Good morning, children. Good morning, ma'am. प्रभाकर सर, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करवा दीजिए हमको. Yes, children. So, what we have completed till last date? Depression in freezing point. Three of the colligative property: lowering in relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, and then depression in freezing point. Are you trying to solve numericals based on these? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to do discuss the last colligative property, that is osmotic pressure. Okay. So first of all, we should know what is osmosis, then how it differs from diffusion, and what is osmotic pressure, and justification that yes, osmotic pressure is a colligative property, and then how we can determine the molar mass with the help of osmotic. Now, children, one very important question often asked in objective type or for 1 mark. Which of the 4 colligative property is the best for determining the molar mass of a solute? The answer is osmotic pressure. And why? The question will be why. The answer is, in rest of the 3, what we have learned till last date: relative lowering in the vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point. In these cases, there is a very small increase or decrease in the boiling point or freezing point, or even the relative lowering, you can say. That means the value changes by a very small amount, and very difficult experimentally to determine the exact value. Because if the value is, suppose there is an increase in the boiling point, so water boils at 100 degrees centigrade, and suppose you have added certain amount of sugar to it or salt to it, then now it starts boiling at 100.1 or 100.2 degree. So this is 0.1 degree or 0.2 degree. This difference is very small, and experimentally it is very difficult to find out the exact difference. That's why they proceed to a wrong conclusion or a very not very exact value for molar mass. But in osmotic pressure, you are getting a quite big number, and that is very easy to determine. So osmotic pressure is the best colligative property to determine the molar masses. चलो अब हम लोग पढ़ते हैं what is osmosis. मेरे ख्याल से आप सबने लोअर क्लासेस में इन बायोलॉजी ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, इवन डिफ्यूजन भी जरूर पढ़ा होगा. यस और नो? यस मैम. यस मैम. ऑस्मोसिस पढ़ा है ना? कोई बता सकता है मुझे कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑस्मोसिस? डे टू डे लाइफ में आप घर पे भी रोज ऑस्मोसिस देखते हो, मम्मी चना भिगोने डाल देती हैं और चना फूल जाता है ना? ये भी एक ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस है. तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज ऑन द स्क्रीन. The spontaneous flow of solvent, it is very important, solvent through a semi-permeable membrane, SPM, this is also very important, from pure solvent to a solution, or from a dilute solution to concentrated solution, is called osmosis. Osmosis का मतलब क्या होता है? It is a spontaneous flow, अपने आप फ्लो करता है, आपको कुछ नहीं करना. अगर आप सूखा चना पानी में डालते हो तो अपने आप पानी उसके अंदर चला जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आप चने को पानी में डालते हो और वो चना के अंदर पानी चला जाता है, ट्रेवल कर जाता है. ठीक है. आप और भी बहुत सारे केसेस आप देखोगे अपने डे टू डे लाइफ में, देखते हो. मैं एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, दैट आल्सो यू कैन परफॉर्म. एक बड़ा सा आलू ले लो और उसको उसका पील निकाल दो, छिलका उसका हटा दो, और फिर क्या करो कि एक अंदर में होल बना दो बड़ा सा. मतलब आलू को इस तरह से कट करो,
कि वो एक कटोरे का शेप ले ले, मतलब एक आउटर बाउंड्री हो आलू का मोटा सा और अंदर में होल हो जाए, ठीक है। और उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हाफ भर दो, हाफ, और उसके और पानी में उसको डुबो दो, इस तरह से कि पानी के अंदर नहीं चला जाए, उसका मतलब आधा बॉडी पानी के ऊपर रहे। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो। 2-3 घंटे के बाद आप क्या देखोगे कि आलू में के अंदर जो आपने सॉल्ट का सोल्यूशन डाला हुआ है, जो आधा ही तक था, अब आलू पूरा का पूरा पानी से भर गया। तो ये पानी आया कहाँ से? जो सराउंडिंग वाटर है, वो सराउंडिंग वाटर आलू के अंदर घुस जाता है, क्योंकि आलू यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, बात मेम्ब्रेन का मतलब होता है वही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात ही हम करते हैं, ऐसे आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है एसपीएम। तो ये यहाँ जरूरी है कि एक एसपीएम हो। और कौन ट्रेवल करता है? अगर आप कोई भी सोल्यूशन लेते हैं, मान लो सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्ट ट्रेवल नहीं करता है, उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट यानी कि वाटर ट्रेवल करता है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वाटर, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये सबको अलाउ नहीं करता कि टू पास थ्रू इट, इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो आप अगर एक कंटेनर लेते हो और उस कंटेनर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हो, जस्ट टू सी दिस, एक कंटेनर आपने ले लिया, एक कंटेनर लिया एंड बीच में आपने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। और इस मेम्ब्रेन के एक तरफ यू जस्ट टेक प्योर सॉल्वेंट, सपोज आप पानी ले रहे हो तो प्योर वाटर, और दूसरे मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ आप ले लो पानी में कुछ भी डिसॉल्व कर दो, सॉल्ट या शुगर या कुछ भी, और सोल्यूशन बना दो। नाउ यू आर टेकिंग द सोल्यूशन। तो आप बताओ, इस एक तरफ आपने यू हैव टेकन प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी है, और दूसरी तरफ आपने सोल्यूशन लिया, दैट मीन्स यू हैव टेकन सॉल्यूट एज वेल एज वाटर। तो व्हाट यू विल सी कि वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस चैम्बर टू दिस चैम्बर, धीरे धीरे पानी यहाँ से निकल के यहाँ जाने लगेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। This process is known as osmosis. Why it happens exactly? तो देखो यहाँ पे कभी कभी बच्चों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, osmosis is a process of transfer of water through a semi-permeable membrane from its higher concentration towards its lower concentration. ऐसे कुछ पढ़ा होगा। Exactly Yes, यहाँ ma'am. पढ़ा है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे दो तरह की बातें होती है। हायर कंसंट्रेशन किसका? विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो कि ज्यादा पानी है, प्योर वाटर है, या ज्यादा पानी और थोड़ा सा आपने कोई भी सॉल्यूट डाला है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। और आपने पानी लिया और उसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट डाला, तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, then the solvent with greater amount of or larger amount of solute will be concentrated, and the solution with lower amount of solute is dilute. तो हमेशा पानी डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर जाता है। पानी डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर जाता है। मैं 2 बार रिपीट क्यों, उसके पीछे समझना है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, एंटायर सॉल्यूशन की, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी का कंसंट्रेशन, पानी का यानी कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा। यस और नो? बताओ। Yes, ma'am. अगर आपने ज्यादा पानी लिया और थोड़ा सॉल्यूट डाला, तो यहाँ पानी ज्यादा है, यानी कि अगर सिर्फ पानी के का पानी की तो पानी यहाँ ज्यादा है। बट पूरे सोल्यूशन की बात करें, यानी कि सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूट की बात करते हैं, तो सॉल्यूट यहाँ कम है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइल्यूट सोल्यूशन। जिसमें सोल्यूशन कम, सॉल्यूट कम होता है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर सॉल्यूट कम है तो वाटर तो ज्यादा है ना, तो वाटर या सॉल्वेंट वो अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की ओर जाता है। खुद वाटर को अगर कंपेयर करते हो दोनों में, तो किसमें पानी ज्यादा है? तो वो जहां पानी ज्यादा है वहां से उस ओर जाएगा जहां पानी कम है।
Am I clear to this point? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अगर जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं डाइल्यूट की, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो उस सॉल्यूशन का एक और नाम है, कोई बता सकता है मुझे वो नाम क्या है? 9 बायोलॉजी में आपने पढ़ा है. व्हाट इज द नेम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक. हाइपो मतलब जिसमें सॉल्यूट कम है, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो पानी या कोई भी सॉल्वेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से होके हाइपरटोनिक की ओर जाएगा. एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ऑस्मोसिस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. no, ma'am. आप कंफ्यूज होते हो. अगर एंटायर सॉल्यूशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर एंटायर सॉल्यूशन की बात करते हैं. बट सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन मूव्स टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन. दोनों का डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is the difference between diffusion and osmosis? अगर कहूँ कि आप यहाँ पे परफ्यूम बॉटल खोल दो, तो परफ्यूम का बॉटल जैसे ही आप खोलोगे थोड़ी देर में पूरा का पूरा रूम में वो परफ्यूम का स्मेल, खुशबू फैल जाती है. डिफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, तो डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस? अब एक एक करके हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं. यहाँ भी इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ भी. देन हाउ डू दे डिफर? तो पहला पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस डायरेक्टली और डायरेक्टली एंड नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड. डिफ्यूजन मतलब गैसियस डिफ्यूजन भी होता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है कि नहीं? आप लेमन जूस डाल दो पानी में, थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा पानी खट्टा हो जाएगा, यानी कि लेमन जूस के मॉलिक्यूल्स एंटायर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिंगल हो गए, लिक्विड इन लिक्विड. यहाँ भी डिफ्यूजन हुआ. अगर आप डालते हो सॉल्ट इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स पूरे वाटर में डिफ्यूज कर जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है. इट्स ऑल्सो अ डिफ्यूजन. और गैसियस डिफ्यूजन भी होता है. आप अगर कोई भी गैस, सपोज कि आप H2S गैस लेते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, या अमोनिया का गैस लेते हो और उसको छोड़ देते हो, इसमें 2 स्पून डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर तो और घट जाएगा ना? Yes, ma'am. घट जाएगा. तो डिफरेंस बढ़ गया कि नहीं? Yes, ma'am. बढ़ गया. डिफरेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पानी, अब प्रेशर ज्यादा लगा पानी को और जल्दी जल्दी उधर जाने लगेगा. ठीक है, पानी तेजी से उधर जाएगा. जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस आप करोगे उतना तेजी से पानी इधर जाएगा, और जितना ज्यादा पानी इधर जाएगा उतना ज्यादा आपको ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए. भाई मत आओ. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो आपको उतना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा. तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है पाई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन in terms of molarity. Yes or no? Yes, ma'am. तो इसका मतलब मोलारिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम पर लीटर. नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स n by. Yes, ma'am. तो इसका मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. Yes, ma'am. तो पाई अगर नंबर ऑफ मोल्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हुआ. हो गया. तो इतना एक्सप्लेनेशन मैंने यही समझाने के लिए दिया था कि पाई इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी. अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बताओ, कोई जस्टिफाई कर सकता है इसको? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यस. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कि नहीं पार्टिकल्स की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ा देते हो,
तो इनके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो तेजी से वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जाने लगेगा। Yes, ma'am. क्लियर? तो इसका मतलब है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इन दोनों चीजों को मैं मिलाती हूँ। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन and pi is directly proportional to temperature. So we can write pi is directly proportional to concentration into temperature. Yes, ma'am. और अगर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाए तो एक कांस्टेंट चाहिए, तो r गैस कांस्टेंट लगा दिया गया है। पाई इज इक्वल टू CRT, वही यहाँ लिखा गया है, पाई इज इक्वल टू CRT। ये एक्सप्रेशन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Where pi is osmotic pressure, C is concentration of solution in molarity, R is gas constant और इसकी वैल्यू दी रहती है जनरली क्वेश्चन पे, और नहीं दी रहती है तो एक दो आपको याद रखना है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, या फिर बार में भी है तो बार वाला भी याद कर सकते हो। एंड T इज द टेम्परेचर ऑन कैल्विन स्केल, कैल्विन स्केल पे आपको टेम्परेचर देना है। तो यहाँ इस स्क्रीन में कोई डिफिकल्टी? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हमने क्या देखा? पाई इज इक्वल टू CRT, अभी देखा ना, पाई इज इक्वल टू CRT। चलो व्हाट इज C? C इज मोलैरिटी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और मोलैरिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन, sorry, per liter volume of the solution, I'm sorry beta, number of moles of solute dissolve per liter volume of solution, molarity, capital M. Any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. Clear? Clear. तो number of moles हम लिख सकते हैं NB, यहाँ छोटा सा b बना दो। नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का, तो NB लिख सकते हैं, और वॉल्यूम इन लीटर VL लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ VL लिख दो। अब ये C के जगह हम N/V लिख सकते हैं, C के जगह Yes, ma'am. N/V लिख Yes, सकते ma'am. हैं। तो पाई इज इक्वल टू N/V, C के जगह N/V, RT लिख दिया, कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. ये N क्या है? N इज Number of moles. Number of moles. यहाँ पर आप कॉपी में नोट कर रहे हो, प्लीज यहाँ पर B छूट गया, स्मॉल b, कैपिटल B Yes, छोटा सा यहाँ पर लिख लो। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास बाई Molar mass. Molar of mass. Molar mass. मास बाई मोलर मास होता है, ठीक है। अब अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना समझो, ये V को यहाँ ले जाते हैं, इस V को यहाँ ले जाते हैं, तो इट विल बी पाई V इज इक्वल टू NRT, पाई V इज इक्वल, अभी नहीं चेंज किया है, इनको रहने दिया, पाई V इज इक्वल टू NRT। एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, विच स्पीक्स PV इज इक्वल टू NRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पढ़ा होगा 11 में, PV is equal Yes, to ma'am. RT. Here P is the pressure of the gas, V is the volume of the container in which gas is contained, N is the number of moles of gas, R is the gas constant, and T is the temperature on Kelvin scale. PV is equal to NRT, आपने गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हुआ है। हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं इससे, पाई V is equal to NRT। ये पाई और पी का ही डिफरेंस है, ये पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये एक्सटर्नल प्रेशर है और ये प्रेशर ऑफ गैस, बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ आर सेम। क्लियर है ना? तो Yes, ma'am. हाँ, तो ये स्लाइड को समझने में कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हमारा एक ही एम होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यही कर रहे थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिलेटिव लोअरिंग में भी MB का वैल्यू निकालना, MB क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी हम लोगों ने देखा MB निकालने का तरीका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमने देखा MB निकालने का तरीका। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हम MB निकाल सकते हैं, दैट मींस जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं।
एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। अभी जो मैंने बताया था इन द बिगनिंग, दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस मिलता है, जो क्वांटिटेटिव डिफरेंस मिलता है, वो एक लार्जर वैल्यू होता है, तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट एरर। बट अगर डिफरेंस बहुत माइन्यूट हो तो एरर आ जाएगा। आपको आंख से देखना है थर्मोमीटर में 100 डिग्री 100.1, जब तक आप 100.1 देखेंगे तब तक हो सकता है थोड़ा मिस भी कर जाए, तो उतना डिफरेंस आप नहीं लोकेट कर पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली 100 है कि 100.1 है या 100.09 है, कुछ इस तरह का डिफरेंसेस, बहुत स्मॉल अमाउंट में डिफरेंसेस होता है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा एरर आ जाता है। बट अगर ये वैल्यू बड़ा हो तो प्रैक्टिकल एरर यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। सो पाई इज इक्वल टू CRT, ये हम लोग देख ले रहे हैं, और पाई का वैल्यू क्या होगा, C के जगह N/V लिख दीजिए, N/V RT, और N/V मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, N/V RT, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज WB/MB, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, Yes, ma'am. बहुत बार रिपीट हुआ। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, WB/MB, तो ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप लिखिए WB/MB, वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में अगर है तो वॉल्यूम V लिख दीजिए, और R and T। अब MB निकालना है तो MB को यहाँ ले आओ, पाई को यहाँ ले आओ, तो MB को यहाँ लाए तो MB इज इक्वल टू WB RT/πV। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई? No, No, ma'am. ma'am. क्लियर? ठीक है, मैम वो एरर वाला क्या बता रही थी? कौन सा? मैम ऊपर एरर वाला आप बता रही थी ना कि कम एरर होता है ज्यादा। हाँ, जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि चारों में सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास, ये क्वेश्चन बनता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट qualitative property to determine the molar mass without any error। क्यों? क्योंकि बाकी में जो डिफरेंसेस है, मतलब आप निकाल रहे हो रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग बहुत स्मॉल अमाउंट से लोअरिंग होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बहुत स्मॉल अमाउंट से एलिवेशन होता है। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि 100 डिग्री पे पानी बॉयल करता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डालोगे तो हो सकता है 101 डिग्री पे बॉईल कर जाए, 102 डिग्री पे बॉईल कर जाए, या हो सकता है 100.09 डिग्री पे बॉईल कर जाए। तो इतना छोटा सा डिफरेंस आप जब ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जब आप करते हो, तो एरर आ सकता है। 101 आपको 101 पॉइंट मतलब 102 दिखाई दे, या 102 101 दिखाई दे, क्योंकि इतना कम का डिफरेंस जो होता है वह आंख से ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, एरर आ सकता है। बट जब ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालते हैं तो ये छोटा सा वैल्यू नहीं होता है, ये काफी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, तो वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम लोग पढ़ते हैं आरओ। आरओ सब लोग सुना होगा, सबके घर में भी होगा, यस मैम। Yes, ना? ma'am. चलो, किसी के घर में कैंट का होगा, किसी के घर में और कोई होगा, है ना? किसी भी कंपनी का आरओ है। आरओ आज के डेट में लगभग सबके घर में आरओ होता है। व्हाट इज आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आरओ मशीन जो आपके घर में लगा हुआ है, ये भी इसी फेनोमेनन पर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के फेनोमेनन पर। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या हो गया? ऑस्मोसिस का उल्टा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और क्वेश्चन इसमें बनता है सीबीएसई का। what do you mean by reverse osmosis? Give its application. What do you mean by reverse osmosis? Give its application. चलिए, पहले तो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। चलिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, वापस हम लोग आते हैं ऑस्मोसिस से। ये हमारा